ये मैंने पहले भी आपको बताया था, we have seen that कि when we give any command or when we run any program, corresponding to that a process is created, and corresponding to every process there is a data structure which is called process control block that used to contain information about that process. What information that process control block can contain? For example, we have seen in life cycle of the process that process during the execution is passing through different states. It starts with new state, then moves to ready state, then run state, then again wait state. So multiple times it is moving from different states. So there are frequent transitions. And we also know that we are having the round robin time shared scheduling implemented in Linux. So what is happening basically, every process is getting the turn of microprocessor only for fixed amount of time. So it's very likely that during the time quantum for which the microprocessor is allocated to any process, the process may not complete its execution. So obviously, when the time quantum expires, then the process has to get added either to the ready queue or to the wait queue. That depends on what was the situation at that time when the time quantum expired. So when it is happening that process is switching from run state to any of the two states, either wait state or ready state. So obviously we must be having certain states available in the registers of microprocessor. आप लोगों ने शायद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा कि inside the microprocessor we are having various registers which are being used as slates by microprocessor for the performance or for performing some of the calculations. For example, we are having instruction pointer or program counter which is always pointing to the next instruction to be fetched from RAM for execution. तो ऐसे ही वहाँ पे जो है रजिस्टर्स के अंदर डेटा जो है रैम से पहले रैम से लेके जो है माइक्रोप्रोसेसर अपने रजिस्टर्स में लेके डाटा आता है, फिर वहाँ कैलकुलेशन होते हैं. इट इज सिमिलर टू say for example, if I'm giving you any problem, so when you are looking at that problem or looking at the book and reading out that problems, and what you are doing basically, you are taking a notebook where you are noting down the values which are stated in that problem. So notebook is corresponding to your own slate. So similarly, microprocessor is having some internal registers, and you must have studied, I believe, those registers in computer organization when you have studied microprocessor. Like program counter is there, like general purpose registers are there, accumulator is there. ठीक है, ये सारे registers उसके अंदर होते हैं और program counter होता है. तो ये इनकी एक state होती है, जैसे जो execution होगा उसके कुछ intermediate results होंगे, and these results need to be preserved somewhere so that next time when the process is going to get the turn and going to move into run state, we can reinstate the previous state of the process. मतलब हम उसकी पुरानी जो स्टेटस था उसका उसको रीगेन कर लें. तो ऑब्वियसली जैसे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर कुछ रिजल्ट्स होंगे, से 25% ऑफ दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, सो दैट 25% मस्ट हैव जनरेटेड सर्टेन रिजल्ट्स. नाउ दोज रिजल्ट्स आर लाइंग इन द registers. So what should happen when the process is leaving the microprocessor or leaving the run state? So what will happen if without preserving the status of current status of microprocessor, if it moves to a different state, then what will happen when next time this process will get the turn for further execution? तो अगर वो 25% या उसने 25 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए हैं, तो अगली बार जब भी उसका रन स्टेट आएगा तो वो 26 में से उसको स्टार्ट करना है. तो ये जो 25 का इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व करना पड़ेगा, सो दैट व्हेन द प्रोसेस इज गेटिंग द टर्न नेक्स्ट टाइम, it has to start from the point where it was interrupted previously, जहां पे पिछली बार ये रोका गया था. तो जो 25 के बाद वाला 26वां इंस्ट्रक्शन है, वहां से इसको स्टार्ट होना है. इसका मतलब है कि जो भी रन स्टेट से जैसे ही उसकी स्टेट ट्रांजिशन होती है, तो उसका जो कंप्लीट स्टेटस है माइक्रोप्रोसेसर का, वी हैव टू प्रिजर्व समवेयर. एंड वेयर डू वी डू दैट? वी आर डूइंग दैट इन स्टैक. आप जानते हैं कि स्टैक हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टैक में पुश कर दिया जाता है उसका स्टेटस. लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस स्पेसिफिक है, क्योंकि स्टैक तो सब प्रोसेस का अलग अलग होगा जहां वो पुश किया गया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसका पार्ट होती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का होती है. ठीक है. तो टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस वी आर हैविंग PID. वी ऑल नो दैट कि प्रोसेसेस आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय अ इंटीजर व्हिच इज कॉल्ड प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्हिच इज डायनामिकली असाइन्ड व्हेनेवर अ प्रोसेस इज क्रिएटेड. ठीक है. इट्स नॉट परमानेंट टाइप कि टुडे इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग एनी कमांड, आई मे बी हैविंग द प्रोसेस ID as 2300, but after that if my execution is over and
I'm executing some other program, so this 2300 has been released. Now any other program may acquire this PID 2300. So at any time, at any given moment of time, all the processes which are existing in the memory, they do have a unique PID, and that PID is logically assigned or dynamically assigned. तो यहाँ पे इन सारे प्रोसेस का जो ट्रैक करने के लिए देयर इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एसोसिएटेड विद एवरी प्रोसेस. दैट इज व्हाई आई केप्ट सेइंग दैट do not get confused when you say that process is the running replica of any program. That gives you this definition gives you an impression that we are confined to merely code and data, but actually we need more than this. So when we say that a process is running, so associated with that process is a data structure which is process control block, which is continuously getting updated, so that whenever the process is changing the status and moving from one state to another state, the state is also registered in process control block कि वो wait से कब ready में गया, ready से कब run में गया, क्योंकि इसी को देख के तो OS जो उसका ट्रैक रखेगा कि कैसे इसकी स्विचिंग हो रही है. तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ठीक है. और इसमें रजिस्टर्स होते हैं, जो टाइम क्वांटम का डेफिनेशन है, जो कितना डिफाइन किया गया वो है. प्रोसेस की प्रायोरिटीज भी होती हैं, जैसे सिस्टम प्रोसेस जो होते हैं विच आर बेसिकली रनिंग फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूजर प्रोसेसेस, दे आर ऑलवेज हैविंग हायर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू यूजर प्रोसेसेस. तो ये सब जो है, ये भी जो है उसके अंदर रहता है कि प्रायोरिटीज क्या है. So this all is the part of process control block or this data structure. So what do we have inside it? Like we are having a pointer which is a stack pointer, which is always pointing to the top position of the stack. ठीक है. और प्रोसेस स्टेट, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है. प्रोसेस नंबर रहता है. Are you getting my voice? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Accordingly, program counter is also there. Program counter जो है is always having the address of the next instruction. I believe you must have studied it in computer organization during the study of microprocessor कि वहाँ program counter होता है. और रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्यूमुलेटर है, बेस रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं. तो ये सब उसके अंदर होते हैं, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि अगर 8085 का आर्किटेक्चर है तो डिफरेंट है, उसमें लेस नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं. लेकिन 8086 ऑनवर्ड्स जो पेंटियम फैमिली है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसमें बेस रजिस्टर्स होते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होते हैं. तो एक्चुअल एड्रेस जो होती है वो बेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज करके बनाई जाती है. तो उसमें सेगमेंट रजिस्टर्स भी होते हैं. तो ये आर्किटेक्चर डिफर करता है माइक्रोप्रोसेसर टू माइक्रोप्रोसेसर, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रिजर्व रहती है. दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. फिर मेमोरी लिमिट्स होती है, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसेस हैं रैम के अंदर, दे आर शेयरिंग द स्पेस अलोंग विद अदर प्रोसेसेस सबमिट बाय डिफरेंट यूजर्स और सबमिटेड बाय द सेम यूजर. So the boundaries are to be maintained, and that information is also stored in the process control block. Then whenever we are if you imagine that this process is corresponding to a C program where you are doing file handling, or even if you are not doing file handling, then also by and large we write the program for taking input and generating output. So they must be using minimum two files. One is the input file, second is the output file. The input file corresponds to your keyboard and the output file corresponds to your monitor. So that information is also the part of process control block. And miscellaneous accounting and status information like कितना CPU यूज हुआ है, क्या टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है, प्रोसेस का या जॉब का नंबर क्या है. नॉर्मली जॉब जो है हम उस टर्म में यूज करते हैं जब किसी हम कमांड को या किसी प्रोग्राम को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वी से कि वी हैव क्रिएटेड अ जॉब. लेकिन इंटरचेंजेबली दिस टर्मिनोलॉजी इज बीइंग यूज्ड कि जॉब्स एंड प्रोसेस बोथ आर रेफरिंग टू द सेम थिंग. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज कि समटाइम्स वी रेफर टू दिस जॉब एज इफ it's a process which we have submitted in the background, but ultimately every process is running in the RAM only. So it stores the register content, also known as execution content of the processor when it was blocked from running. जो मैंने भी आपको बताया कि जो भी रजिस्टर कंटेंट है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने होंगे, so that जब अगली बार उसका टर्न आए तो कैसे माइक्रोप्रोसेसर अपना पिछला वाला इसका स्टेटस रीगेन करेगा. तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहनी चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड विद द यूज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक.
तो ये इसमें एक डायग्राम भी शो किया हुआ है कि देयर इज अ टेबल कॉल्ड प्रोसेस टेबल दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। तो ये एक एरे की तरह है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज मेंटेनिंग पॉइंटर्स टू ईच प्रोसेस पीसीबी हर एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो है उसका एक पॉइंटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है और उसी के थ्रू वो प्रोसेस टेबल को रेफर करता है। तो अगर 20 प्रोसेसेस अगर हमारे क्रिएटेड हैं तो 20 उनके जो है पॉइंटर्स या उनकी जो एड्रेसेस होंगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करेगा सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट इट कैन हैव द एक्सेस ऑफ दोज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। So this information is very important in context to processes. Then the operating system is maintaining consistency by treating everything as a file. So this we all know that कि corresponding to everything we are referring to that it's a file, चाहे वो keyboard हो, mouse हो, hard disk हो, process हो, सब कुछ फाइल है। तो हर एक चीज के करस्पॉन्डिंग जब भी हम किसी को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उसे करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है क्रिएट होगा। जो प्रोसेस के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जरूर बनेगा। सो then other than regular data there are some other data about these files such as their sizes। ये जो है this is somewhat different than this context। So I believe कि process table में और process control block में it is clear कि why do we have process control block। आपने जैसे जब माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशंस पढ़े होंगे तो यू नो दैट कि whenever we are having any architecture of computer, so we are having RAM where we store the programs and the programs are to be executed by microprocessor। So microprocessor has to make use of address bar to generate some address so that a specific location of the RAM can be activated। तो माइक्रोप्रोसेसर में बार्स होती हैं, एड्रेस बार है, डेटा बार है या डेटा बस है और उसके अलावा कंट्रोल बस है। तो जो एड्रेस बस है उस पर जो है माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस डालता है उस लोकेशन की जो रैम की जिसके इसको डाटा को फेच करना होता है या डाटा जिसमें राइट करना होता है। और दूसरा जो है जो डाटा बस है वो इसलिए यूज होती है कि अगर मान लीजिए माइक्रोप्रोसेसर इज जनरेटिंग से एड्रेस 23। सो जब एड्रेस 23 जनरेट होगी इसका मतलब है द लोकेशन ऑफ रैम करस्पॉन्डिंग टू एड्रेस 23 विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है। एंड नाउ सपोज द कंट्रोल बस इज जनरेटिंग द सिग्नल फॉर रीडिंग ऑपरेशन। इसका मतलब है कि क्या करना है माइक्रोप्रोसेसर को उस इनेबल्ड एड्रेस से या उस एक्टिवेटेड लोकेशन से डाटा को रीड करना है। तो डेटा फिर क्या होगा उस लोकेशन से निकल के डाटा बस में आ जाएगा और वहां से फिर वो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आ जाएगा। ऐसे अगर रिवर्स ऑपरेशन करना हो जैसे माइक्रोप्रोसेसर हैज जनरेटेड सम रिजल्ट एंड इट हैज टू राइट दैट रिजल्ट बैक टू रैम, then if it suppose it has to write that result at location number 26, so it has to put that address 26 on the address bar so that the location corresponding to 26 will be activated, and at the same time it will put the data also on the data bus which has to be written to that location, and it is also generating the control signal right। So that signal is actually triggering that location to take the data from data bus। So by this way the data is stored in the location। तो इस तरीके से जो है ये हैंडलिंग होती है। अब जब भी data is fetched from the RAM and it has to be processed, so obviously inside the microprocessor we must have some intermediate registers so that we can store दिस डेटा इन द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में स्टोर करने के लिए उन रजिस्टर्स का यूज होता है। और आप जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्यूमुलेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर इज ऑलवेज इंडिकेटिंग द नेक्स्ट लोकेशन और द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो कंसेप्ट है वेयर माइक्रोप्रोसेसर इज फेचिंग द डेटा फ्रॉम द रैम और राइटिंग द डेटा इनटू द रैम, so that is facilitated with the use of three buses, and I'm sure that you must have studied address bus, data bus and control bus। और उसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो आप जानते हैं कि उसके अंदर रजिस्टर्स होंगे और प्रोग्राम काउंटर जो है इज आल्सो अ रजिस्टर। व्हाट इज बाय द वे व्हाट इज अ रजिस्टर? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द रजिस्टर? आपने जैसे सीओ पढ़ा है तो इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज रजिस्टर, see I am not asking for any bookish language, but whatever you have understood from the concept of register that you please tell me what is register। अच्छा, what is the smallest unit?
in electronic circuit that can be used to store a single zero or a single one? Sir, bit. Bit is the smallest number that you can store, but where you can store? What is the smallest system in which you can store either a single zero or a single one? What is that Sir, in electronic the latch, circuit? sir. In the latch. In the latch? Yes, sir. Flip Latch is flop. also known as a register, sir. सिंगल बिट के लिए लैच को यूज करते हैं? Yes. Flip flop for 1 bit information. Register are the collection of flip-flops. हाँ, रजिस्टर जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं, हम एक जीरो या एक वन को स्टोर कर सकते हैं। जब मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर देते हैं तो एक रजिस्टर बन जाता है, और जब मल्टीपल रजिस्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो एक रैम टाइप की लोकेशन बन जाए, रैम टाइप का आर्किटेक्चर बन जाता है। और इसको समझना इसलिए भी बड़ा आसान है क्योंकि इसको कंपेयर करें सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ सॉर्ट ऑफ अलमीरा वेयर यू आर हैविंग डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। जैसे अलमारी में अलग अलग खाने होते हैं, वैसे यहाँ अलग अलग रजिस्टर्स हैं, एंड एवरी रजिस्टर हैज सम एड्रेस। सो इन कॉन्टेक्स्ट टू रैम वी आर रेफरिंग एवरी रजिस्टर एज ए लोकेशन। और आप जानते हैं कि सिस्टम के अंदर आपकी रैम कितनी भी हो, लेकिन एक लोकेशन जो है वो कितने बिट डेटा स्टोर करती है? डिटेल में कितने बिट डेटा स्टोर करती है एक लोकेशन? सर 8 बिट डेटा, सर। 8 बिट, हाँ। इसीलिए जब हम सी पढ़ते हैं और हम ये कहते हैं कि इंटीजर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया एंड इट इज ऑक्यूपाइंग 2 बाइट स्पेस, तो इसका मतलब है कि रैम की दो लोकेशन मिलके इसका एरिया कंस्टिट्यूट करेंगी। एंड व्हेन वी राइट स्कैन ऑफ %a, अगर %d के साथ हम %a लिखते हैं तो वी आर सप्लाइंग द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ द वेरिएबल a। तो आपने जब int a डिफाइन किया होगा कहीं, तो इट मस्ट हैव ऑक्यूपाइड सम स्पेस इन द रैम, तो वो दो लोकेशन का होगा। एंड लेट अस सपोज दैट दोस टू लोकेशंस आर 23 एंड 24, तो एट %a इज ऑलवेज रेफरिंग टू द बिगिनिंग एड्रेस दैट इज 23, इस केस में 23 है। तो इसलिए स्कैनफ का क्योंकि जो सिंटैक्स है वो हमें एड्रेस चाहता है कि हम एड्रेस को सप्लाई करें, सो दैट वट एवर नंबर यू आर इनपुटिंग फ्रॉम कीबोर्ड दैट कैन गो टू दैट पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ द रैम। तो इसलिए उसके लिए हम एम्परसेंड कन्वेंशन यूज करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग कि विच एड्रेस इज गोइंग टू गेट असाइन टू वेरिएबल ए। जो वो तो आपका जब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उस समय डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन उसको असाइन हो गई। तो जो भी उसकी एड्रेस होगी उसका इजी गोइंग एक मेथड है कि जब उसको एम्परसेंड उसको लगा देंगे तो वी आर रेफरिंग टू द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ दैट ए। तो अगर उसमें दो लोकेशंस इन्वॉल्व हैं, मतलब दो लोकेशन का मतलब 16 बिट का, तो उस केस में उसकी जो लोअर एड्रेस है इज द बिगिनिंग एड्रेस, ठीक है। तो इसलिए %a जो है हमेशा उसकी बिगिनिंग एड्रेस को देती है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट %d that we defined as a control argument in scanf, that actually tells ki this address 23 is not alone, rather 23 and 24 both should be considered together to store the data. So %d is a indicative for integer, so that is why when data we store from the keyboard, जब हम डाटा कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो वहां पे 2 बाइट में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर यही %f होता तो वो 4 बाइट में आता, हालांकि बिगिनिंग एड्रेस वहां पे भी 23 होती। तो एम्परसेंड जो है वो तो आपको बिगिनिंग एड्रेस देता है, लेकिन जो %d है, %f है, %c है, ये बताता है कि उस एड्रेस से हाउ मेनी अदर फर्दर लोकेशंस। So when it is integer, further location is one more. That means only 2 location data. तो वो 2 बाइट स्टोर कर लेता है। अगर %f करते हैं तो वो 4 बाइट डेटा स्टोर कर लेता है। c करते हैं तो एक ही बाइट, मतलब एक ही लोकेशन में डेटा स्टोर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटर रिलेटेड सी हैं। तो वही यहाँ पे समझना जरूरी है कि हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। सो नाउ कमिंग फर्दर टू दिस स्लाइड, एक्चुअली इसके आगे वाली जो स्लाइड है इस पे मैंने हेडिंग नहीं डाली है, बट बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट आई नोड। और ये मैंने पहले ही बताया था कि जैसे अगर हम कहते हैं कि एवरी डायरेक्टरी इज नथिंग बट अ फाइल, एवरी रेगुलर फाइल इज ए फाइल। रेगुलर फाइल जैसे मैंने आपको लाइनक्स में शुरू में ही बताया था कि जिसको अब तक हम फाइल कहते हैं विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज एक्चुअली अ रेगुलर फाइल। और डायरेक्टरी भी एक रेगुलर फाइल की तरह ही फाइल है, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि उसमें देयर वी आर हैविंग 2 कॉलम एंट्री, वन इज द name of those files which are lying in that directory, and corresponding to every file name we are having a inode number, ठीक है, एक आई नंबर उसमें लिखा होता है।
तो जब हम खाली ls कमांड देते हैं तो ls का स्कोप इज कन्फाइंड टू दैट डायरेक्टरी फाइल ओनली. सो दैट इज व्हाई व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इज नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाटएवर लिस्टिंग वी आर गेटिंग ऑन स्क्रीन विद सिंपली गिविंग ls, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दो दैट लिस्टिंग. जैसे अगर उसमें abc आ रहा है, xyz आ रहा है, pqr आ रहा है, तो इसको देख के तो आपको नहीं मालूम चलता कि ये डायरेक्टरी फाइल है, कि ये रेगुलर फाइल है, कि ये डिवाइस फाइल है, या इसके ऊपर राइट्स क्या हैं, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन रहती ही नहीं है. तो उसके लिए एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर है या एक अलग से टेबल है, और उस टेबल को ही हम inode टेबल कहते हैं, वेयर वी आर हैविंग द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फाइल. लेकिन उस जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हम कह रहे हैं उस टेबल के अंदर, वहां क्या चीज नहीं होती, वहां पे उस फाइल का नाम नहीं होता, क्योंकि फाइल का नाम विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द डायरेक्टरी. And why do we need that file ka naam? Because when we are giving when we are opening a particular file, so obviously file will be searched in that current directory जहां पे आप उसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें वो सर्च करेगा और फाइल जब मिल जाएगी तो उससे करस्पॉन्डिंग वो आई नंबर वहां से पता चल जाएगा उसको. वो एड्रेस है inode टेबल की. तो जब वो inode टेबल को रेफर करेगा तो वहां उसको इस फाइल के बारे में रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे abc xyz के बारे में रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन. तो उस टेबल के अंदर क्या नहीं लिखा होता, abc नहीं लिखा होता, xyz नहीं लिखा होता, उसकी जरूरत नहीं है. रीजन बीइंग कि वो तो डायरेक्टरी में लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वो वहां डायरेक्टरी में लिखी है. उसी एड्रेस के थ्रू हम इस टेबल को एक्सेस कर सकते हैं. एंड व्हाट दैट टेबल इज कंटेनिंग, इट इज कंटेनिंग मेटा डेटा अबाउट दैट फाइल. डाटा जो abc कंटेंट्स थोड़े इस टेबल में होंगे, केवल मेटा डेटा है जो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ abc, इसका कौन ओनर है, इसका ग्रुप, ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, कितने कौन कौन से ब्लॉक्स इसको असाइंड है जहां ये एक्चुअली इसके कंटेंट को स्टोर किया गया है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वी आर हैविंग इन द inode टेबल. सो इन Linux और Unix ऑपरेटिंग सिस्टम वी नो दैट कि एवरीथिंग वी आर ट्रीटिंग एज फाइल्स, एंड द रेगुलर फाइल्स जिसको अब तक हम कहते आए हैं वो हमारी वही फाइल्स हैं जहां टेक्स्ट को, म्यूजिक को, वीडियोस को रखते हैं, और उसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग फाइल्स होती हैं. लेकिन हर एक फाइल में जो हमें चाहिए क्या होता है कि जो जैसे उसका साइज क्या है फाइल का, उसकी ओनरशिप क्या है, उस पर परमिशंस कौन से सेट हैं, टाइम स्टैम्प मतलब कब वो क्रिएट करी गई, कब वो लास्ट एक्सेस की गई, कब वो लास्ट मॉडिफाई की गई. तो ये सारा मेटा डेटा जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड inode. ठीक है. सो नोड नंबर इज आल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर, एंड inode इज अ यूनिक नंबर असाइंड टू फाइल्स and directories while it is created. The inode number will be unique to the entire file system. पूरे फाइल सिस्टम में जो inode नंबर होगा वो यूनिक रहेगा, क्योंकि तभी तो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा डिफरेंट फाइल से. तो इसमें फर्दर इसके बारे में जो है, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर इसका दिखाया गया है कि व्हाट डू वी हैव इनसाइड दैट inode डेटा स्ट्रक्चर. जैसे स्टार्टिंग में इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो यहाँ पे ये जो ऊपर दिखाई दे रहा डायरेक्टरी, ये यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर वी आर हैविंग द फाइल नेम एंड द करस्पॉन्डिंग inode नंबर. तो इस inode नंबर से जो है हमें डेटा किसका मिलता है, इस फाइल .txt का, और वो यहाँ पे कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. तो मेटा डेटा में और क्या क्या हो सकता है, जैसे उसके ऊपर परमिशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी परमिशन उस पर यूजर की हैं, ग्रुप की हैं और अदर्स की हैं. तो आपको ये मालूम है कि RWX, तो वो जो 9 बिट्स हैं, जो 9 डिजिट्स हैं, सॉरी, जो करेक्टर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, दे आर कमिंग फॉर inode टेबल. सो दैट इज व्हाई व्हेन यू राइट ओनली ls, सो यू रिमेन कन्फाइंड टू दिस डायरेक्टरी ओनली. लेकिन व्हेन यू राइट ls-l, तो दैट मीन्स नाउ यू आर रेफरिंग to the inode table also, so remaining information or additional information will be fetched from the inode table. तो वहां से फिर ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ फेच करता है. अब इसमें यू हैव द टाइप ऑफ फाइल, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि रेगुलर फाइल है कि डायरेक्टरी फाइल है कि पाइप है. फिर व्हाट आर द परमिशंस, तो जो 9 कैरेक्टर्स हैं, दे आर टेलिंग यू अबाउट परमिशन सेट फॉर यूजर, ग्रुप एंड अदर्स. फिर लिंक काउंट जो है ये सिनोनिम्स होते हैं किसी एक फाइल के. वन फाइल में भी रेफर्ड विद मल्टीपल नेम्स. जैसे ये एक सिक्योरिटी फीचर भी है लाइनक्स का कि जैसे सपोज आई एम हैविंग वन फाइल इन माय लॉगिन एंड से वन ऑफ यू इज द प्रोजेक्ट पार्टनर ऑफ माइन and we both are working on a particular project. So obviously whatever development I am doing, I would like to share with my project fellow. So
this may require that I should share some of the vital information of my login with my project fellow, like if he's coming to the department and he has the lab session and say I am absent, so he may ask me ki, you please tell me the password so that I can have access of the file or program which you have created so far. तो ये कभी भी advisable नहीं होता, even if you may be very close to anybody and you may be working with 2 or 3 persons on the same project. So what you can do, you can make certain files shareable with others. So even if you are absent, other person don't need to come to your area to have the access of that file, because since you have shared, so he must be having a pointer lying in his own directory which is pointing to your file. तो जब भी वो अपनी फाइल को ओपन करेगा, जो पॉइंटर है पॉइंटिंग टू योर फाइल, तो वो उसको आप उसके थ्रू वो आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है विदाउट गेटिंग लॉग्ड इन टू योर सिस्टम. तो ये जो शेयरिंग है दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ लिंक. और ये दो तरीके के लिंक्स हैं जो शायद मैंने क्लास में थोड़ी ब्रीफली डिस्कस किए थे. एक हार्ड लिंक है, एक सॉफ्ट लिंक है. हार्ड लिंक जो है वो पुराना डेवलपमेंट है. हार्ड लिंक में क्या होता है कि जैसे आप बाद में समझेंगे कि अगर हम एक हार्ड डिस्क के ऊपर कई पार्टीशंस बना सकते हैं और हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग एक फाइल सिस्टम होता है. तो अगर हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं तो हर एक में एक सेपरेट फाइल सिस्टम होगा. ठीक है. या ये भी हो सकता है कि एक हार्ड डिस्क और है और वहां पे भी 2 फाइल सिस्टम्स हैं, 2 पार्टीशंस हैं. अब मान लीजिए ऐसा है कि हमारा, और या ये भी हो सकता है कि एक फाइल सिस्टम जो है वो एक हमारी जो फाइल है, ये फाइल सिस्टम है वो अक्रॉस द डायरेक्टरीज है, अक्रॉस द डिस्क है. क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम 2 डिस्क को भी सिंगल लॉजिकल एंटिटी के रूप में रेफर कर सकते हैं. तो अगर हम हार्ड लिंक को यूज करते हैं तो हार्ड लिंक क्या करता है कि केवल एक जो करंट आपकी जो फाइल है, केवल जो करंट आपकी जो फाइल सिस्टम है, केवल उसी तक कन्फाइंड रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता. मतलब अगर आप एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, से आई एम इन माय डायरेक्टरी आई विश टू क्रिएट अ लिंक with a file which Brijnandan is having in his login area. तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन यही है कि we both should belong to the same file system अगर वो हार्ड लिंक है. ठीक है. लेकिन अगर हम सॉफ्ट लिंक को यूज करते हैं तो ये और पावरफुल है. इट इवन अलाउज दैट वन ऑफ अस मे बी ऑन अ डिफरेंट फाइल सिस्टम, लेकिन हम उसके अक्रॉस भी, फाइल सिस्टम के अक्रॉस भी जाके फाइल्स को शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट लिंक. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन की एक पर्टिकुलर फाइल पे, जैसे इफ सपोज आई एम हैविंग अ फाइल ABC एंड आई एम शेयरिंग इट विद वन ऑफ यू. सो इफ you are sharing my file, so you must have created a link of my file. So the same file will be visible in your login area also with that link which you have created. रेफर तो दोनों एक ही कंटेंट को करेंगे, नाम अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ लिंक काउंट बढ़ जाती है. लिंक काउंट बढ़ जाती है मतलब मेरे में भी 2 दिखाई देगा और उसके में भी 2 दिखाई देगा. वो ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल जो है किसी अकेले कंटेंट को एक बार रेफर नहीं कर रही, बल्कि 2 नाम से सेम कंटेंट को रेफर किया जा रहा है. इसीलिए वहां पे काउंट जो है वो 2 आती है. और इसीलिए अगर आप ls-l करके देखें तो आई सपोज कि सेकंड जो कॉलम होता है, जो 10 कैरेक्टर वाला कॉलम फर्स्ट होता है, उसके बाद जो सेकंड कॉलम होता है, देयर यू आर हैविंग अ नंबर and most of the time that number is 1, but at some places that number is 2 or at some places that number is 3. So that is actually the link count, कि उस फाइल के कितने इंस्टेंसेस और जगह से यूज हो रहे हैं. ठीक है. तो अगर मान लीजिए हमारी फाइल जो ABC मेरे लॉगिन की है, उसके 2 जो लिंक्स क्रिएट किए गए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को उनकी एक्सेस है, तो मेरे में जब मैं उस फाइल को लिस्ट करूंगा ABC को, तो उसके बिफोर जो है काउंट 3 आ रही होगी. दैट 3 इंडिकेट्स कि दिस फाइल इज हैविंग 3 synonyms, मतलब इसके अलावा 2 इसके नाम और हैं, and all of them are referring to the same contents. ठीक है. तो ये जो है ये लिंक का कंसेप्ट है. और उसके अलावा यूजर आईडी यू नो, ग्रुप आईडी यू नो, साइज ऑफ फाइल इज आल्सो देयर, टाइम स्टैंपिंग यू नो कि एक्सेस टाइम क्या है, मॉडिफिकेशन टाइम क्या है उसका. ठीक है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें टाइम स्टैंपिंग में रहती है. और फाइल के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं कि उसके ऊपर सेट कर दिया गया कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें क्या क्या उसके जो है उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है जिसमें परमिशन है कि स्पेशल यूजर्स को या ग्रुप को, तो उसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है. और लिंक टू लोकेशन ऑफ अ फाइल,
फाइल की जो लोकेशन है उसका लिंक भी वहाँ पे दिया होगा। तो लोकेशन फाइल की जो है उसमें लिंक जो उसके होते हैं वो अभी आप इसमें देखेंगे कि अगर वो फाइल जो है छोटी है और उसको 4 ब्लॉक में ही वो अकोमोडेट हो सकती है, तो उन चारों की जो एड्रेसेस हैं उनके चारों के लिंक्स जो है यहाँ पे लिखे रहते हैं। और भी अगर कोई एडिशनल उसके बारे में जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारा मेटा डेटा जो है इज स्टोर्ड इन द inode टेबल, ठीक है, वो इसी में स्टोर्ड होता है। अब लेआउट ऑफ द फाइल सिस्टम, जैसे कमिंग बैक की inode की जो है ज़रूरत कब पड़ती है? inode की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं, क्योंकि merely डायरेक्टरी जो है इज नॉट सफिशिएंट टू टेल यू अबाउट एनी फाइल which is stored in that directory। उसके अलावा हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और हर एक इसीलिए हर डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स होती है उनके करस्पॉन्डिंग एक टेबल होती है जो फर्दर इन्फॉर्मेशन रखती है। अब ये जो हमारा जो पूरा हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम फाइल सिस्टम्स बनाते हैं, उन फाइल सिस्टम्स को हम अरेंज कैसे करते हैं? तो बेसिकली आप तो ये समझे पहले कि डिस्क को यू कैन व्यू एज इफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। बहुत सारे ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है, और वो ब्लॉक क्या है? दे आर द स्टोरेज यूनिट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड व्हेन यू क्रिएट एनी फाइल। और वो फाइल डायरेक्टरी हो सकती है, वो फाइल रेगुलर हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है जिसको आप क्रिएट करते हैं तो उसको वो ब्लॉक्स असाइन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि क्लस्टर का कंसेप्ट है और सेक्टर का कंसेप्ट है, वैसे ही यहाँ ब्लॉक का कंसेप्ट है। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं दे आर अरेंज्ड बाय एंड लार्ज इन 4 ग्रुप्स। तो वन इज बूट ब्लॉक, सेकेंड इज सुपर ब्लॉक, एंड थर्ड इज inode लिस्ट, एंड द लास्ट इज डेटा ब्लॉक्स। बूट ब्लॉक्स में एक या एक से ज़्यादा भी ब्लॉक हो सकते हैं, और इसमें बूट स्ट्रैप कोड रहता है। हम सब जानते हैं कि व्हेन वी से कि कभी अगर हम सिस्टम को बूट करना चाहते हैं और अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक डेड ह्यूमन बॉडी की तरह है। एंड व्हेन यू आर बूटिंग द सिस्टम दैट मीन्स यू आर पुटिंग द सोल इन दैट मशीन, ठीक है। तो जब जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता कहाँ? इट इज़ लाइंग ऑन द हार्ड डिस्क। तो कैसे ये इंटेलिजेंस आता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर कैसे इनिशियली ये करता है कि वो सीधे हार्ड डिस्क पे जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा को उठाने की कोशिश करता है? क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, और अगर हम ये कहते हैं कि उसका ऑपरेशनल एक्टिविटी तो तब आती है जब ओएस उसके अंदर लोड हो जाता है। तो अभी तो ओएस लोड हुआ नहीं, लेकिन फिर भी तो कुछ इंटेलिजेंशिया उसके अंदर होता है। जैसे कि अगर आप उसका कीबोर्ड डिस्कनेक्ट कर दें तो शुरू में ही वो बैड कमांड का या बैड कीबोर्ड का जो है मैसेज दे देता है। और उसके अलावा वो अभी तो नहीं, जब आप विंडोज़ में ऐसे काम करते हैं, लेकिन वो चेकिंग होती थी, जैसे रैम की 1 2 3 4 और पूरा रैम जो है चेक हो जाता है। तो वो पोस्ट रूटीन्स होते हैं जो बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, और वो पोस्ट रूटीन्स स्टोर्ड कहाँ होते हैं? बायोस में होते हैं। और बायोस का मतलब है कि ई प्रॉम में, या जो आप रॉम पढ़ते हैं रॉम के अंदर। तो जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये जो ई प्रॉम के अंदर प्री स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रूटीन्स कहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। और उसी में से एक रूटीन का ये जॉब होता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रोग्राम को पुल करे रैम के अंदर। और वो किस प्रोग्राम को पुल करता है? जिस प्रोग्राम को पुल करता है वो प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप कोड। तो जब वो कोड लोड होता है तो वो क्या करता है? क्योंकि वो बूट स्ट्रैपिंग करता है, मतलब वो खींचता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से। तो लेकिन बूट स्ट्रैप कोड को भी तो लोड होना पड़ेगा हार्ड डिस्क से रैम के अंदर, तो उसको तो लोड कराने का काम जो है वो पोस्ट रूटीन के अंदर एक रूटीन का जॉब है। लेकिन जब बूट स्ट्रैप एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिमेनिंग पोर्शन को इट इज पुलिंग इनसाइड द रैम, और वो जो सिस्टम एरिया रैम का है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है। तो जो बूट ब्लॉक है उसमें ये बूट स्ट्रैप कोड होता है, लेकिन माइंड इट, हर एक फाइल सिस्टम के बूट ब्लॉक के अंदर जो है बूट स्ट्रैप कोड नहीं होता। केवल उसी फाइल सिस्टम के अंदर बूट ब्लॉक के अंदर बूट स्ट्रैप कोड होता है जो कि हमारा रूट फाइल सिस्टम होता है, जो मेन फाइल सिस्टम है, जो बाय डिफॉल्ट जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो एक्टिवेट होता है। बाकी तो आपके अगर 3 पार्टीशन और हैं तो उन तीनों में भी फाइल सिस्टम है, लेकिन उसके बूट ब्लॉक में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो बूटिंग के काम आए, ठीक है। तो वहाँ पे खाली एक बूट ब्लॉक का सिंगल ब्लॉक होगा और उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन वो हाँ फिक्स इसलिए है कि हो सकता है कभी आप उस पार्टीशन को एक्टिवेट करना चाहें और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहें, ठीक है। सेकेंड जो है वो सुपर ब्लॉक है, जो कि अगेन इट इज यू कैन से मेटा डेटा अबाउट द फाइल सिस्टम। जो पूरा फाइल सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर जो स्पैंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? सुपर ब्लॉक के अंदर। तो दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ दैट फाइल सिस्टम, कितनी फाइल्स उसके अंदर स्टोर हैं, फ्री स्पेस कहाँ पे फाइल सिस्टम को मिलेगा,
मतलब इसके अंदर ये ट्रैक होता है कि जो चौथा ग्रुप है जिसको हम कह रहे हैं कि डेटा ब्लॉक्स, ये डेटा ब्लॉक्स वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअली फाइल्स के कंटेंट स्टोर होते हैं, ये चौथा जो एरिया है। और आई नोड लिस्ट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो फाइल्स होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो आई नोड्स होती हैं वो सारी की सारी आई नोड्स इसके अंदर आई नोड लिस्ट का पार्ट होती है। ठीक है, तो डेटा ब्लॉक्स जो है ये एक वेरिएबल एरिया है, क्योंकि जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको बहुत सारे डेटा असाइन होते हैं, उसमें से कुछ बहुत सारे डेटा ब्लॉक्स जो हैं अनयूज्ड हैं, जिनको आने वाली फाइल्स को हम असाइन कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है कि कितने कौन से अनयूज्ड हैं, कौन से यूज्ड हैं, दैट एंटायर ट्रेल इज मेंटेन्ड बाय द सुपर ब्लॉक। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। उसके बाद अगर आपने 50 फाइलें क्रिएट करी हैं तो आई नोड लिस्ट के अंदर यू मस्ट बी हैविंग द 50 आई नोड्स, क्योंकि वो 50 आई नोड में से हर एक आई नोड करस्पॉन्डिंग टू वन फाइल है, और क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 50 फाइलें हैं तो 50 आई नोड्स उसके अंदर होंगे। तो आई नोड लिस्ट यू कैन इमेजिन एज इफ इट्स एन एरे वेयर एवरी एरे एलिमेंट इज नथिंग बट अ आई नोड टेबल, उसकी एड्रेस है। ठीक है, एक ना एक आई नोड टेबल की एड्रेस है, और हर एक आई नोड टेबल क्या है, वो किसी फाइल के बारे में उसमें मेटा डेटा स्टोर्ड है। तो जो हार्ड डिस्क का एरिया है उसको बेसिकली स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू अ सिंगल फाइल सिस्टम, जब हम हार्ड डिस्क कह रहे हैं तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वन फाइल सिस्टम और वन पार्टीशन। तो एक पार्टीशन के अंदर वी आर हैविंग 4 एरियाज, जिसमें एक जो है वो बूट ब्लॉक के लिए है, बूट ब्लॉक का है, सुपर ब्लॉक का है, फिर आई नोड लिस्ट का है, और लास्ट वाला डेटा ब्लॉक्स का है। तो इस तरीके से जो है स्टोरेज स्पेस जो एक फाइल सिस्टम को एलोकेटेड है वो डिवाइडेड रहता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर वेयर हाउ डू वी हैव बूट ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, आई नोड लिस्ट एंड डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन फर्दर इसके अंदर दी हुई है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, इसमें एक चीज़ आप समझ लें कि जैसे जब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ a logical block. Logical block means in previous class when we discussed about sector. So sector is a physical block because it's a 512 byte space. That is the smallest unit which can be allocated to any incoming file. But उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बहुत छोटी यूनिट रखते हैं किसी भी इनकमिंग फाइल के लिए, तो वो जो है फाइल का साइज अगर मान लीजिए बड़ा है तो बहुत सारे ब्लॉक्स उसको बार बार असाइन करने पड़ते हैं, और अगर फाइल इतने टुकड़ों में बटी होगी तो जब फाइल को हम ओपन करेंगे तो जो मैप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है टू कलेक्ट ऑल द स्कैटर्ड पीसेस ऑफ दैट फाइल, दैट विल क्रिएट अ ओवरहेड. So that is why it is not suggested that in order to efficiently utilize the space, we break that file into very small pieces. No, it's not advisable. We should have reasonable size pieces because we have to make a trade off between the speed and the space utilization. हम खाली अगर space utilization देखेंगे और बहुत छोटे टुकड़े कर देंगे तो आपका जो speed है वो slow हो जाएगी, क्योंकि those many scattered pieces are to be collected before displaying that file as a single logical file before the user. तो वो कलेक्शन करने में और उसको डाटा रिट्रीव करने में टाइम लग जाएगा। आप जानते हैं लिंक लिस्ट जैसे होता है, अगर 50 उसके जो है नोट्स क्रिएट कर दोगे तो 50 को इकट्ठा करने में टाइम लग जाएगा, और अगर एक फाइल को ब्रेक करके केवल 10 ही नोट क्रिएट करते हैं तो 10 से तो डाटा जल्दी निकल आएगा ना 50 के कंपैरिजन में। तो इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट शुरू में देखा था, तो मैंने कहा था कि वहाँ पे जो सेक्टर्स हैं दे कैन बी कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर. So thus just that concept is applicable over here, and here we say logical block and physical block. Physical block corresponds to sector. कि 512 का अगर हम कहें कि ये physical block है और दो physical block मिलके एक logical block बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक logical block कितने का हो गया, 1 किलोबाइट का हो गया. तो that will become a smallest unit that can be assigned to any incoming file. Now the size of his logical block is variable size होता है इसका, और ये दैट डिपेंड्स कि आपने कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया, दैट आल्सो डिपेंड्स कि व्हाट इज द यूजर्स चॉइस. ठीक है, लेकिन जो फिजिकल ब्लॉक है उसके ऊपर आपकी चॉइस नहीं होती, वो फिक्स होते हैं. जैसे अगर आप डॉस के केस में देखें तो जो फ्लॉपी है या हार्ड डिस्क है उसके अंदर हर एक सेक्टर का साइज फिक्स है, 512 बाइट उसमें आती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती. और ये स्मॉलेस्ट फिजिकल जो है लोकेशन, एक स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट है दैट कैन बी अलॉटेड टू एनी इनकमिंग फाइल. लेकिन वहाँ पे जो क्लस्टर बनते हैं वो
2 सेक्टर का भी बन सकता है, 4 सेक्टर का भी बन सकता है। अगर 2 सेक्टर का बनता है तो इसका मतलब है 512 जो कंसेक्यूटिव लोकेशंस हैं 2 सेक्टर्स की, वो दोनों मिलके टुगेदर कंस्टिट्यूट अ सिंगल लॉजिकल ब्लॉक विच इज कॉल्ड क्लस्टर। और अगर हम 4 का करते हैं तो इसका मतलब है कि 2 किलोबाइट विल बिकम द सिंगल लॉजिकल एंटिटी दैट कैन बी असाइन टू एनी इनकमिंग फाइल जिसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आई सपोज कि ये क्लियर होगा कि इसमें एक ट्रेड ऑफ रहता है बिटवीन द स्पीड एंड द स्पेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो वही डिटेल्स जो है यहाँ पे दी हुई है कि आई नोड ब्लॉक में क्या है, डाटा ब्लॉक में क्या है और सुपर ब्लॉक में क्या है। शेयर दिस पीपीटी इन योर ग्रुप, ठीक है, सो दैट everybody can see ki what do we have in the concept of inode, what do we have in the concept of super block, data block, boot block, ठीक है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फॉर दैट मैटर। लेकिन ये तीनों टॉपिक जो है अलग अलग हैं, इनका रेलेवेंस अलग अलग है। पीसीबी जो है इज रेलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोसेस, inode इज रेलेवेंट टू इन कॉन्टेक्स्ट टू फाइल। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं तो फाइल्स क्या करती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, इट्स अ हायरार्की ऑफ फाइल्स ओनली वेयर वी आर हैविंग some of the files as directories and some of the files as regular files or device files or special files। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फर्दर यही लिखा हुआ है कि व्हाट डू वी हैव इन द inode की ओनर आइडेंटिफिकेशन है, टाइप ऑफ फाइल है, एक्सेस परमिशन है, टाइम्स एंड डेट्स हैं, फाइल क्रिएशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम, लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, नंबर ऑफ लिंक्स उस फाइल के कितने हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स जो होती हैं उसमें ये माना जाता है कि 10 इसके अंदर एड्रेसेस होंगी, डायरेक्ट होंगी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि एक लॉजिकल ब्लॉक जो है वो 1 किलोबाइट का है तो इसका मतलब है 10 किलोबाइट तक का स्पेस जो है वो तो उसकी एड्रेस जो है मतलब 10 लॉजिकल ब्लॉक की एड्रेस तो डायरेक्टली आपको जो है inode टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाती है। तो इसका मतलब है फाइल का साइज कहाँ तक जा सकता है, 10 किलोबाइट तक का, क्योंकि एक अगर हम लॉजिकल ब्लॉक को मान रहे हैं 1 किलोबाइट का तो 10 उसके अंदर अगर पॉइंटर्स हैं और हर एक पॉइंटर इज व्हाट, हर एक पॉइंटर इज एड्रेस लॉजिकल ब्लॉक। तो एक ब्लॉक अगर 1 किलोबाइट का है तो 10 अगर 10 ऑक्युपाई हो गए, 10 यूज हो गए तो ये 10 जो है ये 10 एड्रेसेस हो गई और इसमें 10 किलोबाइट तक का फाइल का साइज हो सकता है। लेकिन फाइल जब इंक्रीज करती है उसका साइज जो है अगर 10 किलोबाइट से भी ग्रेटर हो गया तब क्या है कि ये जो 10 एड्रेस डायरेक्टली हैं यहाँ पे जिनको हम डायरेक्ट एड्रेसेस कहते हैं दे आर इनसफिशिएंट, तो फिर हम 11वीं एड्रेस को यूज करते हैं। नाउ 11वीं एड्रेस इज एक्चुअली is the address of a block. If we go to that block there will be having the further addresses। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 256 फर्दर एड्रेसेस हैं तो इसका मतलब है कि 10 किलोबाइट स्पेस तो 10 डायरेक्ट ब्लॉक से मिल जाएगा और अगर 11वां ब्लॉक जो है वो उसमें 256 एड्रेसेस हो सकती हैं। हो सकता है कि सारी की सारी एड्रेसेस ना यूज हो, मान लीजिए 2 ही एड्रेस हो लेकिन हो सकता है कि 256 की 256 यूज हो, तो साइज कितना बढ़ जाएगा 256 किलोबाइट और प्लस 10 किलोबाइट तो कितना हो जाएगा 266 किलोबाइट। तो फाइल का साइज 266 किलोबाइट का। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इनडायरेक्ट ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट इनडायरेक्ट एड्रेस सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड इनडायरेक्ट एड्रेस। सेकंड इनडायरेक्ट एड्रेस जो होती है वो 12वीं एड्रेस होती है और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी रेफर टू दैट एड्रेस it is the address of a block। if we go to that address, that block, we are having 256 further addresses where each of the further address is pointing to another block where further we are having 256 addresses। तो इसका मतलब है कि अब इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो द साइज विल बी ग्रोन टू 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 अगर 12वीं एड्रेस पूरी यूज हो जाती है। अब अगर फाइल का साइज इससे भी बड़ा हो तब फिर वो थर्ड वाला आता है और थर्ड वाले में फिर आप 3 लेवल तक चले जाते हैं। इट इज रेफरिंग टू दिस ब्लॉक, एवरी एड्रेस इज रेफरिंग टू अनदर ब्लॉक एंड एवरी एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक अनदर ब्लॉक। ठीक है, तो फिर साइज कितना हो जाएगा, जितना आपने ये लिखा एक्सप्रेशन उतना और उसके बाद प्लस 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256। लेकिन इतनी बड़ी साइज को वी डू नॉट लेट एनी फाइल टू ग्रो टू दैट मच एक्सटेंट, तो वी आर हैविंग सम चेक्स एंड वन ऑफ द चेक इज यू लिमिट। ये जो है एडमिन जो है पहले से ही इसकी लिमिट एक सेट कर लेता है कि एक फाइल का साइज कितना ग्रो कर सकता है, उसके बियॉन्ड फिर फाइल क्रिएट ही नहीं हो सकती, वरना तो इट इज पॉसिबल दैट द एंटायर स्पेस विल बी ईटन आउट बाय अ सिंगल पर्सन ओनली विद अ सिंगल फाइल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द inode। आई एम stopping here only and links will discuss in the next lecture।
लेकिन मैं ये शेयर कर लूँगा क्योंकि लिंक्स का कुछ हिस्सा मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। So ending my lecture here only.